electric charges and field. This lecture contains the 21 years PYQ for AIMS examination. So let's get started. Now this question is from NCERT. ये NCERT के एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में दे रखा है, ठीक है? तुम बुक खोलो और देख लो, सेम क्वेश्चन सेम फिगर में दे रखा है. बस इसके जो डाटा है उसको चेंज किया, बाकी कॉन्सेप्ट है. नाउ तुम खुद सोच सकते हो इस लेवल बिकॉज़ दिस वाज आस्क्ड इन 2016 in AIMS and this is also asked once in IIT JEE, ठीक है? सो लेवल क्वेश्चन अच्छा है और अगर क्वेश्चन को अगर पेपर को टफ करना हुआ इन द नीट एग्जामिनेशन तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि PYQ भी है और टफ भी है. सो हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम हियर एजर्शन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? और अराउंड 10 क्वेश्चंस एजर्शन के PYQ में पूछे गए थे. सो लेट्स डू इट वन बाय वन. The PYQ section of electric charges and field. This lecture contains the 21 years PYQ for AIMS examination. So let's get started. Now before going to start this lecture, I'm going to tell you कि जो भी questions है you can do it yourself by pausing the video and at last you can match कि कितने questions गलत है और कितने questions सही है और कौन से question में किस process से तुमने उसको solve करा है. इसमें total 43 questions हैं which includes the Azerson region question also. Okay, till 2017 from 1997. Okay. So let's get started with the first question. Question number 1. First, a body can be negatively charged by. So it is very simple. A body can be negatively charged by adding the electrons to it. Adding electrons to it. So giving excess of electron to it, then the body will be negatively charged. अगर तुमने electron and removing the electron, so the body will become positively charged. ठीक है? So यहाँ पे जो क्वेश्चन है it is asking about the negatively charged, so by adding the electron and also you can keep in mind one important thing from the NCERT textbook of this chapter. Benjamin Franklin was the one जिन्होंने positive और negative charge के बारे में बताया था and also plastic rod and silk, these are negatively charged entities. ठीक है? So keep in mind. और ये अगर दो बातें तुम्हें नहीं पता है so you can go and watch the playlist जिसमें lectures के textbook uploaded है with the explanation of physics, chemistry and biology. So let's move to the question number 2 of 1919. The number of electrons in 1 coulomb of charge. So यहाँ पे quantization of charge है, that is Q is equal to Ne. So Q is equal to 1 coulomb and then we have to find N. And E is 1.6 into 10 to power minus 19. So the N is equal to 1 divided by 1.6 into 10 to power minus 19 and that is equal to 6.25 into 10 to the power 18, which is option number C. Now question number 3 of 2000. यहाँ पे क्या है? If EA is the electric field due to the dipole in its axial plane and EQ is the electric field at its equatorial plane, then the relation between EA and EQ. This is very evident. जो तुम्हारा electric field axial पे होता है that is equal to 2 kp divided by L cube और जो equatorial पे होता है that is equal to minus kp L cube. So यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल है दैट इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल. तो यहाँ पे मॉड यूज करा है सो यहाँ पे कोई माइनस चार्ज नहीं है. सो योर आंसर इज ऑप्शन सी. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन और नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. दिस इज वेरी इजी एंड ऑल दिस 3 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. कोई बाहर से नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो किसी टीचर के नोट्स हैं. ऑल थिंग्स आर गिवन इन द एनसीईआरटी बुक एंड यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट ऑफ द एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस चैप्टर of current edition. Now question number 4 which was asked in 2000 only. A particle of mass 2 gram and charge is held at a distance 1 meter from the fixed charge. और ये रहा fixed charge. So fixed charge are the source charge और जो test charge होते हैं वो movable charge होते हैं. ये सारे NCERT में चीजें हैं. If the particle is released it will be repelled. The speed of the particle when it is at the distance 10 meter from the fixed charge. तो यहाँ पे हमें स्पीड फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट है 2 चैप्टर्स के. सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिक्स्ड है. तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन यू कैन मार्क बिकॉज ये अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लो. अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इनटू चेंज इन पोटेंशियल. सो इस फॉर्मूला से तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो. काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv². वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी. कीप इन माइंड यहाँ पे जो Q है जो चार्ज है इसको तुम यहाँ पे ले लो और यहाँ पे हमें पहले चेंज इन पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा. ओके सो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू V माइनस VB. तो जो पोटेंशियल A है दैट इज K इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 यानी कि माइक्रो कूलम में था ना इसलिए 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1 मीटर एंड सब्सट्रैक्ट दिस विद द VB. ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB. ठीक है तो यहाँ पे जो VB है दैट इज अगेन K और यहाँ पे जो Q है 10 टू पावर माइनस 3 कूलम है. ठीक है यहाँ पे मिली है. इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड इट विल बी रिपेल्ड. तो ये भी डिस्टेंस कितना है इसका भी डिस्टेंस है. ओके देखो यहाँ पे मैंने सोर्स चार्ज को ले लिया. ठीक है सोर्स चार्ज को हम नहीं छेड़ते. सोर्स चार्ज को हम यहाँ पे यूज करेंगे. इस वाले में हम इसको सोर्स चार्ज को यूज करेंगे और सोर्स चार्ज जो है वो है फिक्स चार्ज दैट इज
10⁻³ कूलम। तो यहाँ पे देखो अगेन k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10, बिकॉज यहाँ पे देखो 10 मीटर यूज किया ना एट द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। सो यहाँ पे जो सोर्स चार्ज की वैल्यू तुम पुट करो दैट इज इक्वल टू 10⁻³ नाउ k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 और 10⁻6। अब यहाँ पे तुम कॉमन लो 1/10 सो इज इक्वल टू 9/10। इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो खुद से, दैट इज नॉट दैट हार्ड। 10⁻9 इंटू 10⁻6, so 9 into 10 to the power 3 multiplied by 9 divided by 10, that is equal to 81 into 100, so that is equal to 8100। now this is equal to half mv square। तो यहाँ पे जो मास था that was equal to 2 grams, यानी कि 2 into 10 to the power -3 kg multiplied by velocity square। तो जो यहाँ पे अपना velocity आएगा that is equal to into 3। ओके यहाँ पे तो क्यूब से मल्टीप्लाई करना रह रहा है ना अभी अपना, तो यहाँ पे अगेन क्यूब आएगा, सोर्स चार्ज तो यहाँ पे आ गया 10⁻⁻3। सो यहाँ पे भी 10⁻⁻3 से तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा जो कि सोर्स चार्ज था। सो दिस विल कैंसल आउट दिस, और जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू √81 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। ओके सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 2001। So what is the electric flux associated with one of the face of cube when the charge q is enclosed in the cube? So this is very simple. So this is your cube. This is having the 6 faces और इसके अंदर एक चार्ज q है। तो एज अ होल टोटल q की जब तुम बात करो तो यहाँ से q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, बट तुम जब बात करते हो फ्रॉम वन ऑफ द फेस देन दिस विल बी इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज हमें सिर्फ किसी एक फेस पे देखना है। ठीक है, we are not going to see the whole 6 faces, only one face। तो आप तुम इसको 6 से डिवाइड करोगे and our correct answer is option B। okay, now question number 6, a point charge q and -2q are placed at some distance apart। this was question of 2001 from 2001। if the electric field at the location of q is E, the electric field at the location of q is E, same चीज रिपीट हो गया। so the electric field at location -2q क्या होगा? तो तुम्हें सिंपली ये क्वेश्चन जो बोल रहा है पहले उसको लिख लो जो गिवन है क्वेश्चन में। 2 point charges हैं q and -2q, these are placed at some distance। ठीक है, some distance मान लो। ठीक है, if the electric field at the location of q, यहाँ पे जो electric field है that is equal to E। now what is the electric field at the location of -2q? okay, so what is the E1? अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये तो होता है अपना KQ_R²। ठीक है, तो इस चीज को तुम करो साइड, यहाँ पे हम यूज करते हैं अपनी एक प्रॉपर्टी को। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे फोर्स जो होगा वो Q और 2Q दोनों पे इक्वल होगा। फोर्स एट 1 इज इक्वल टू फोर्स एट 2। ठीक है, तो फोर्स जो 1 पे है दैट इज इक्वल टू Q और E, F इज इक्वल टू QE, सो Q मल्टीप्लाइड बाई E। नाउ दिस विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन -2Q, सो इसका जो फोर्स होगा दैट विल इक्वल टू -2Q इंटू E डैश, जो हमें फाइंड आउट करना है। now q से q गया, now this E dash is equal to minus E/2। okay, so this was based on the property F1 is equal to F2 on these two charges। so जो correct answer होगा that will be option C, minus E/2। now let's move to the next question of 2002। how many electrons make up the charge 20 microcoulomb? so again q is equal to NA, quantization of charge। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और यहाँ पे n जो है फाइंड आउट करना है और E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो n इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+19, दिस इज इक्वल टू 10⁻13 20 डिवाइडेड बाई 1.6, तो ये हो गया 10⁻14 और ये 0 हो गया खत्म यहाँ से। now this will be equal to 1.25 into 10⁻14, so correct answer is option A। this was also a good question। now question number 8 of 2002। now this is very simple, pause, solve, check, और देखो कि किस पोर्शन में तुम्हारी मिस्टेक हो रही है और तुमने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया और किस में मिस्टेक करा, और
यू कैन कमेंट कि तुमने कितने क्वेश्चन करेक्ट किया, कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज विथ 10 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पे चार्ज है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5 कुलम। अनदर अनचार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 20 centimeter is allowed to touch it for some time. After it, the spheres are separated. Then the surface density of charges on the sphere will be. Now, what is the surface density? That is charge per unit area. Charge divided by area. So this is the surface density, and this is also represented by sigma. Now, this is not a hard question. This is quite easy question. अगर तुम्हें पता हो एक formula, that is equal to Q1 is equal to R1 divided by R1 plus R2 multiplied by Q total, और यहाँ पे Q total है that is 10 to power minus 5 coulomb, and जब चार्ज तुम सेकेंड वाले स्फीयर में फाइंड आउट करोगे that will be equal to R2 divided by R1 plus R2 multiplied by Q total, और लास्ट में इसको हम एरिया से इसके रिस्पेक्टिव एरिया से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सो लेट्स फाइंड फॉर द Q1 फर्स्ट। तो यहाँ पे जो अपना Q1 होगा चार्ज दैट इज इक्वल टू R1 दैट वाज 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 20, बिकॉज 20 जो रेडियस था वो सेकंड वाले स्फीयर का था, और जो टोटल चार्ज था दैट वाज इक्वल टू 10 माइक्रोकुलम विच इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 5 कुलम। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग आवर Q1 दैट इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 5। अगर इसके सरफेस डेंसिटी को फाइंड आउट करना है तो जस्ट इसको डिवाइड कर दो इसके एरिया से, और जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और जो आर स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो अब हमें फाइंड आउट करना है Q1 और Q2 के बीच में, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को तुम लिख सकते हो सिग्मा 1। सो लेट्स रिमूव दिस और इसको लिखो सिग्मा 1 और यहाँ पे लिखो सिग्मा 2। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर? सो दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 30 एंड Q टोटल दैट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 5 कुलम, यानी कि 2/3 और टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई करो तो 2/3 10 पावर माइनस 5 10 टू पावर माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे 20 टू द होल स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल आउट। सो जो तुम्हारा आंसर फाइंड आउट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2:3। ये मैंने इस 3 को ऊपर भेज दिया। नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर यानी कि 100, और ऊपर चला जाएगा ये 20 ऊपर चला जाएगा दैट विल इक्वल टू 400। तो बस अब इसको तुम कैंसिल आउट करो, 3 से 3 कैंसिल यानी कि 1/2 और यहाँ पे 4 बचा, ठीक है 4, यानी इसका आंसर आया 2:1, और जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 2:1। सो दिस वाज आल्सो अ गुड क्वेश्चन। बस यहाँ पे अगर कुछ पता रहना चाहिए तो Q1 और Q2 और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ 2003, द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस। अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस्ड होगा, बिकॉज जहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे फोर्स कैंसल आउट होता है, और टॉर्क तो दोनों पोजीशन में रहता है, वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो वहाँ पे टॉर्क एग्जिस्ट करता है। दिस वॉज ऑल्सो अ पॉइंट फ्रॉम द एनसीईआरटी, और वहाँ पे काफी क्लियरली टेक्स्ट बुक में ये रिटन है। सो अगेन आई एम सेइंग अगर तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है सो गो एंड चेक द प्लेलिस्ट जिसमें सारे लेक्चर्स फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, जिसको इसमें तुम रीड कर सकते हो और देख सकते हो कि सारे जो क्वेश्चन जो एम्स में फ्रेम होते थे, जो भी टेक्स्ट बुक से ही होते थे, जो भी क्वेश्चन फ्रेम होते थे। सो यहाँ पे देखो ओनली अ फोर्स बट नो टॉर्क गलत, बोथ टॉर्क एंड अ नेट फोर्स, इसको भी रखो पॉज में, पहले देखो सारे ऑप्शन को। ओनली अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स गलत, नो टॉर्क ये भी गलत। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, दोनों एग्जिस्ट करेगा। बट यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ नेट टॉर्क एग्जिस्ट करता, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ 2003, 3 charges are placed at the vertices of the equilibrium triangle, ये रहा +q -q और +q, और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज a, साइड की जो लेंथ है। सो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस एट द वर्टेक्स a इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू BC is, ठीक है। तो इसको देखो, फोर्स हमें देखना है, फोर्स इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसकी फोर्स की डायरेक्शन को, सभी की फोर्स की डायरेक्शन को लिखते हैं, ठीक है। सो तो चलो फोर्स के डायरेक्शन को पहले हम देखते हैं। तो फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी वाले चार्ज की वजह से जो आएगा इसके टुवर्ड्स आएगा, ठीक है, बिकॉज ये निगेटिव चार्ज है। फिर ये सी की वजह से ए पे ये ऐसे जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है। तो तुम कह सकते हो कि जो नेट फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा विच इज पैरेलल टू BC। अगर फोर्स पैरेलल टू BC है तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए इन डायरेक्शन नॉर्मल टू BC। तो यहाँ पे नॉर्मल की बातें कर रहा है, परपेंडिकुलर की, तो हम कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट है ना परपेंडिकुलर
BC के वो हो जाएगा 0, बिकॉज हमारा जो कंपोनेंट जो है वो पैरेलल मिल रहा है और क्वेश्चन में परपेंडिकुलर के लिए पूछ रहा है. सो आर आंसर इज 0. ठीक है. सो दिस वॉज क्वेश्चन ऑफ 2003 एंड दिस वॉज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. ठीक है. Now let's see the question number 11 of 2003. Shown below is the distribution of charges. The flux of electric field due to these charges through the surface S is. तो तुम्हें पता रहना चाहिए कि जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो ना, तब तुम सिर्फ किसी सरफेस के अंदर के चार्ज को नहीं, बस उसके बाहर के चार्ज को भी हम कंसीडर करते हैं. ठीक है. आउटसाइड प्लस इनसाइड हमें दोनों को कंसीडर करना होता है. एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट्स टू पॉन्डर ये था कि अगर कोई डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है किसी गॉसियन सरफेस के अंदर, डाइपोल चार्जेस यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 हो जाएगी? तो आंसर था नो, नॉट इन ऑल केसेस. तो ये पॉइंट्स टू पॉन्डर का क्वेश्चन है जो एक हिसाब से इसको तुम समझो कि इसने ड्राइव कर रखा है. ठीक है. सो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. Shown below is the distribution of charges, the flux of the electric field due to these charges through the surfaces. But question में तो अपने को फ्लक्स पूछ रहा है ना. Say this, the flux. तो जो फ्लक्स होता है ना, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द चार्जेस जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर होते हैं, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू इनसाइड होता है. तो तुम देख सकते हो यहाँ पे प्लस माइनस है डाइपोल चार्ज, तो प्लस माइनस दोनों ऐड हो गए, नेट चार्ज 0 हो जाएगा. सो जो नेट फ्लक्स होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2004 विच इज क्वेश्चन नंबर 12. अब देखो यहाँ पे इसने पूछा क्या है. अगेन आई एम सेइंग यू कैन पॉज द लेक्चर और तुम देखो कि तुमने कितना करेक्ट किया, और एट लास्ट यू कैन कमेंट कि तुमने ये क्वेश्चन करेक्ट किया, किस ईयर का करेक्ट किया. ठीक है. या कौन सा गलत हुआ बस वो अपना बता दो. जैसे 43 है ना, सो 43 आउट ऑफ अगर तूने 40 करेक्ट किया तो यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12. द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग sphere of radius r as a function of the distance from the center is represented graphically by. तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है. यहाँ पे स्फीयर है तो इसके लिए कौन सा सही होगा? द करेक्ट वन इज बी, बिकॉज जब हम स्फीयर की बातें कर रहे होते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, तो जो चार्ज होता है ना जो अंदर की तरफ होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. तो तुम कह सकते हो दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अंदर में, बट जैसे जैसे तुम बाहर आते हो दैट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर. ठीक है. तुम देख सकते हो जो जब अंदर की, सपोज करो कि ये सॉलिड स्फीयर है और तुमने यहाँ पे अंदर की तरफ किसी डिस्टेंस आर नॉट पे फाइंड आउट करना है. ओके. और इसकी जो रेडियस है दैट इज आर. तो जब तुम अंदर की तरफ फाइंड करोगे ना आर नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस विल बी इक्वल टू के क्यू आर नॉट डिवाइडेड बाई आर क्यू. तो तुम कह सकते हो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट. ठीक है. बट जब तुम बाहर की तरफ आते हो, सपोज करो सरफेस पे या सरफेस के आउटसाइड पे, सो दिस विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई अब सपोज करो कि तुमने यहाँ पे सरफेस के बाहर आर डैश लिया था, सो आर डैश का होल स्क्वायर. तो तुम कह सकते हो कि बाहर की तरफ ये इनवर्सली हो जा रहा है और अंदर की तरफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो दिस इज वैलिड फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए होना चाहिए. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13 which was asked in 2004. This is a good question. अब देखो in the basic सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कटायन और अनायन दे रखा है, सीजियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयंस का, जो कि अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू द बीसीसी कॉन्फ़िगरेशन. सो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द 8 कटायन आयंस ऑन द Cl माइनस आयन जो कि अनायन है. तो ये जो कटायन है इसने अपना पोजीशन कहाँ लिया है? एज पे लिया है क्यूब के. सो 1 2 3 4 और नीचे है 4, यानी कि ये टोटल हो गए 8, और अंदर की तरफ कितना है? एक अनायन है जो कि क्लोराइड माइनस है. तो हमें यहाँ फाइंड करना है द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, देखो क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है बट दिस इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज यहाँ पे एक सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है और जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. ओके. बिकॉज ऑल CS आयंस आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड Cl माइनस. सो जो रिजल्टेंट होगा ऑल फोर्सेस जो एक्टिंग करेंगे Cl माइनस की तरफ वो हो जाएंगे 0. ठीक है. तो ये आप लिख लो कि डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट एंड ऑल फोर्सेस विल कैंसल आउट और वो हो जाएगा 0. ओके. बस ये क्वेश्चन इतना ही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ 2005. अब देखो यहाँ पे क्या है? टू इन्फिनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैविंग द अब यहाँ पे है कंडक्टिंग प्लेट्स है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा. ओके. आर सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस. द मीडियन बिटवीन
the plate is vacuum, if epsilon naught is the dielectric permittivity of the vacuum, then the electric field in the region between the plates is। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, अब इसको हम देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब ये बोल क्या रहा है, तो ये रहा अपना दो प्लेट, ये रहा सिग्मा और ये रहा माइनस सिग्मा। तो जो अपने चार्जेस की जो प्लेसमेंट होगी कुछ ऐसे कर लो, प्लस 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 प्लस, और यहाँ हो गया माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो अंदर की तरफ यहाँ पे है वैक्यूम। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, सपोज करो कि यहाँ पे कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पी पे। ठीक, तो अब देखो इसको हम कैसे आगे सॉल्व करते हैं। नाउ फील्ड एट पी ड्यू टू प्लेट ए, देखो तो ये रहा अपना प्लेट ए और ये रहा अपना प्लेट पी। ओके, नाउ जो फील्ड पी पे जो प्लेट ए की वजह से होगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस बीपी यानी कि प्लेट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हो रहा है पी पॉइंट पे, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब तुम दोनों को ऐड करोगे सो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू वोल्ट डिवाइडेड बाई मीटर, बिकॉज जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई आर, तो वोल्ट डिवाइडेड बाई मीटर। तो इससे तुम करके इसकी एसआई यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर यहाँ पे नेट डायरेक्शन ही पूछता ना तो वो भी कोई ज़्यादा टफ नहीं था, तुम उसको भी बता सकते थे काफ़ी इजली। तो लेट मी शो यू, अगर कोई नेट डायरेक्शन होता तो पॉजिटिव वाले वजह से कुछ इधर की तरफ नेट डायरेक्शन आता इवन का, और प्लेट बी के चलते ये एक निगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ भी कुछ इस तरफ डायरेक्शन आता। ठीक है, तो जो नेट डायरेक्शन होता ये टुवर्ड्स द प्लेट बी होता निगेटिव साइड की तरफ। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो तुम कह सकते थे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2E के बराबर हो जाएगा, और E जो है दैट वाज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई करता 2 से तो तुम्हारा आंसर अगेन सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाता। तो दिस इज नॉट दैट हार्ड, तुम कर सकते थे इसको। अगर गलत हो गया तो कोई नहीं, सीख लो, आगे वाले एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है, दिस वाज ऑफ 2005। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियाई है आर ए और बी वाले की रेडियाई है आर बी, और यहाँ पे जो आर बी है ना वो थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू आर ए। ठीक है, और ये रहा आर बी। तो अब पूछ क्या रहा है, चार्ज इस पे है क्यू ए और क्यू बी। ठीक है, इस पे हो गया चार्ज क्यू ए और इस पे है चार्ज माइनस क्यू बी। अगेन यहाँ पे अगर तुम मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हो मॉड लेकर तो क्यू बी इज ग्रेटर देन क्यू ए। बस अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज, ओके तो एक कॉन्सेंट्रिक था क्या, ओके कॉन्सेंट्रिक है ये। तो जैसे मान लो, ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन। सो दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन फ्रॉम 2005 ओनली। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको भी तुम कर सकते हो स्टार मार्क, गलत हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो क्या, अभी तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला तो कॉन्सेंट्रिक बोला ना, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, अगर ये शेल है तो तुम कहते कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होगा ना ये पे वो हो जाएगा जीरो, तो तुम डायरेक्टली क्या कर देते, इस वाले को चूज कर लेते क्योंकि यहाँ पे जीरो है। बट नहीं, ये नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तुम देखो जो अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस में इसने पोटेंशियल ले रखा है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में होता तब तुम कह सकते थे कि ये आंसर करेक्ट होता, बट यहाँ पे ये पोटेंशियल के टर्म्स में, तो तुम कहोगे कि पोटेंशियल होता है कांस्टेंट अंदर की तरफ, तो यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, यहाँ भी कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये दोनों करेक्ट नहीं है बिकॉज हमें कांस्टेंट चाहिए पोटेंशियल। ओके, तो ये दोनों भी सही दिख रहे हैं ना। यहाँ पे आर ए से लेकर आर बी तक भी ये कांस्टेंट है, विच इज नॉट करेक्ट, बिकॉज आर ए से लेकर आर बी तक इस वाले डिस्टेंस पे ये तो ऐसा नहीं है कि ना ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हल्का हल्का डिक्रीज करेगा, सो दिस इज करेक्ट। तो ये अगेन गलत हो गया ना, जो आरबी से लेके है वहां पे उसने निगेटिव के टर्म्स में निगेटिव चार्ज ले रखा है, तो यहाँ पे हम उसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दें निगेटिव साइड्स की तरफ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बट व्हेन करेक्ट जब ये पोटेंशियल और एक्स के टर्म्स में है। ठीक है, पोटेंशियल एक्स के टर्म्स में है, बट अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के टर्म्स में होता सो ऑप्शन ए करेक्ट होता, बट यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो तो पोटेंशियल के टर्म्स में है। सो दिस आर द स्मॉल थिंग्स, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2005 ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर। अब इसको देखो,
द पार्टिकल हैविंग द चार्ज q एंड मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी दे रखा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी दे रखा. सो द चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग एनी इंटरवल टाइम गिवन इज. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो हमने इतनी बार सॉल्व कर रखा होता है कि तुम्हें याद ही होगा. क्यू ई टी हम ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं. बस इसको देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. सो देखो, इम्पल्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, डेल्टा पी. और अगर तुम फोर्स होता है ना, फोर्स को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी. तो अगेन दिस थिंग इज इन एनसीईआरटी, अगर तुम उसको रीड करोगे तो समझ जाएंगी छोटी छोटी चीजें. बट यहाँ पे इम्पल्स है तो दिस इज ओनली चेंज इन इम्पल्स, यानी कि सॉरी इम्पल्स है. सो दिस इज ओनली अ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि एम बी माइनस एम बी. ठीक है, और यहाँ पे M1 V1 ले लो, M2 V2 ले लो, कुछ भी. सो ऐसा कुछ होता है. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स को फोर्स इंटू टाइम भी बोल सकते हैं. तो फोर्स को तुम क्या बोल सकते हो, फोर्स को हम बोल सकते हैं क्यू ई, और टाइम को क्या हो सकता है, हम टी बोल सकते हैं. दिस इज क्वाइट सिंपल. तो पहली बात ये जीरो होगा नहीं, क्यू ई टी के नीचे एम. अगर तुम यूनिट डायमेंशन के साथ भी देखो तो ये कुछ इसका डायमेंशन क्या आएगा, इसका डायमेंशन आएगा एल टी माइनस टू. तो हमें एक्सेलरेशन थोड़ी फाइंड करना है, तो इससे दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, और अगर तुम सॉरी एक्सेलरेशन में बोल रहा हूँ, एल टी माइनस वन हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा और ये भी गलत हो गया. सो दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर जो होगा तुम्हारा. अगर तुम यूनिट डायमेंशन से भी देखो तो काफी इजी है. अब तुम अगर कंफ्यूज होते फिर कि यहाँ पे जे वेक्टर है, आई जे वेक्टर, तो तुम वहाँ पे कंफ्यूज मत हो. बस तुम यूनिट डायमेंशन से जो भी आसानी से सॉल्व हो सके उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2006. टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल चार्ज डेंसिटीज, दैट इज द चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ अपोजिट साइन, यानी कि एक में प्लस सिग्मा और एक में माइनस सिग्मा है. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स इज. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख रखा है ना, तो ये हो गया प्लस के लिए, हो गया माइनस के लिए. ठीक है, सो तुम कह सकते हो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का रिपीटिशन है, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं है. तो यहाँ पे सपोज करो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे फाइंड आउट करना है. तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी, इस प्लेट की वजह से, बी प्लेट की वजह से भी नेगेटिव फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरफ आएगी, और जो ई नेट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2E. ओके, और जो अपना ई होता है दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 26.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, और जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12. तो तुम कह सकते हो कि 10 टू पावर माइनस 12 10 टू पावर माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ तुम्हारा जो आंसर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 3. ओके, तो तुम कह सकते हो 17 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 3 न्यूटन पर कूलम. दिस वाज आल्सो अ गुड क्वेश्चन. यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी था छोटा सा और हल्का ही कैलकुलेशन भी था. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन काफी इजीली नीट में क्रिएट हो सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. The spatial distribution of the electric field due to two charges AB as shown in the figure, which of the following is correct? Now this question is a type of question जो कि NCERT में भी तुम देख सकते हो. ठीक है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट वहीं से इसको उठाया गया है. तो तुम कह रहे हो कि यहाँ से देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की डायरेक्शन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, और यहाँ पे देखो ये अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज रहा होगा. तो तुम कह लो A इज पॉजिटिव, B इज निगेटिव. ये तो कुछ सही लग रहा. A इज निगेटिव रॉन्ग, बोथ आर पॉजिटिव रॉन्ग, बोथ आर निगेटिव, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. A is positive as electric lines are coming out of it, and B is negative because electric lines are entering into it. So this was the only concept used. और इसका डायग्राम के साथ NCERT में एक्सप्लेनेशन है. आई एम अगेंस्ट टेलिंग यू कि तुम नोट्स को 5 बार पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है. नोट्स को 4 बार ही पढ़ो और उस एक बार में तुम NCERT की बुक रीडिंग ले लो. ठीक है, बुक रीडिंग नहीं हो पा रही है, लेक्चर देख लो फ्रॉम द प्लेलिस्ट. नहीं देखना प्लेलिस्ट से लेक्चर, खुद से पढ़ लो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ 2008. 3 point charges which is plus q minus 2q and plus q are placed at x is equal to 0, y is equal to a, z is equal to 0, और यहाँ पे तीनों की वैल्यू 0 0 दे रखी है. ठीक है, सो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और काफी वो है ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है अपने टर्म्स की वजह से. तो तुम देख सकते हो यहाँ पे पहली बात तुम चार्जेस को लिख लो जो जो क्वेश्चन में दे रखे हैं. नाउ दिस आर प्लेस्ड एट द पॉइंट, इसकी इनिशियल पोजीशन है. ओके, एंड यहाँ पे जो पहला वाला प्लेस्ड है वो प्लेस्ड है y इज इक्वल टू ए पे. ओके, और जो सेकेंड वाला चार्ज है दैट इज प्लेस्ड एट 0. ठीक है, ये ओरिजिन पे प्लेस्ड है. और जो थर्ड वाला चार्ज है दिस इज प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू a.
तो अगर तुम इसको कुछ ड्रॉ करो ऐसे, तो यहाँ पे तुम मान लो जो चार्ज है तुम्हारा -2q, और y पे है प्लेस्ड है तुम्हारा +q, और x पे प्लेस्ड है +q, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में दैट इज a, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो a। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले मैग्नीट्यूड को देखो, तो तुम इस -2q को ऐसे ही तो लिख सकते हो ना, इस -2q को तुम वेट अ मिनट, तो -2q को -q -q लिख लो। तो तुम यहाँ पे डाइपोल को देखो, एक डाइपोल इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते रहे दिखेगा -q से +q, और दूसरा डाइपोल जो होगा वो अगेन -q से +q इस डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, तो जो तुम्हारा नेट डाइपोल तुम कह सकते हो, नेट डाइपोल कहोगे √2 इंटू QA। ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल। ओके, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। तो ऑप्शन सी को तुमने कर दिया एलिमिनेट। नाउ इट इज अलोंग +y डायरेक्शन। तो तुम देख सकते हो अगर मैग्नीट्यूड तुम्हारा कुछ दो ऐसे है, तो उसका जो रिजल्टेंट है कुछ इस डायरेक्शन में आना चाहिए ना। सो जो तुम्हारा +y डायरेक्शन है दिस इज रॉन्ग। सेकंड वाले को देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है, और थर्ड वाले को देखो यहाँ पे +x है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये कुछ बीच में आना चाहिए। तो ये दोनों रॉन्ग हो गया, तो बचा सिर्फ एक ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। तुम एलिमिनेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे। अब देखो इसका जो कोऑर्डिनेट क्या दे रखा, x = 0, y = 0, z = 0, एंड xa y a z = 0। तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा जो रिजल्टेंट होगा उसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होगा, a मान लो a, a, 0। तो तुम्हारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ 2008। यहाँ नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में दे रखा है। ठीक है, तुम बुक खोलो और वहां पे देख लो, सेम क्वेश्चन सेम फिगर में दे रखा है। बस इसके जो डाटा है ना उसको इसने चेंज किया, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। नाउ हॉलो सिलेंडर हैज चार्ज q कूलम, यहाँ पे ले लो q कूलम इनसाइड इट। नाउ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस ऑफ बी। यानी कि ये जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है बी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है EF दैट इज इक्वल टू फाई द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस A इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। तो अब हमें फ्लक्स बताना है इस A के लिए, यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा। ओके, सो यू कैन से दैट, एक कॉन्सेप्ट तुम अप्लाई करो और तुम कह सकते हो कि यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होगा फाई टोटल दैट इज इक्वल टू फाई A प्लस फाई B प्लस फाई C। और यहाँ पे टोटल चार्ज इनसाइड जो है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, सिर्फ एक चार्ज है 1q। तो यहाँ तुम लिख सो q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हें फाइंड आउट करना है a के लिए। तो तुम देख सकते हो a और c के लिए दोनों का जो फ्लक्स होगा दोनों सेम होगा, बिकॉज इनकी जो एरिया वो सेम है। तो तुम a को ऐसे लिख लो 2 फाई a, और यहाँ पे तुमने c को चेंज कर दिया ना, c को तुमने फाई a बोल दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से तुमने 2 फाई a लिख दिया, और फाई b की वैल्यू जो बुक में दे रखी है, सॉरी जो क्वेश्चन में बोल रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू 5। तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा जो फाई a फाइंड करना होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5, और दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, तो फाई a इज इक्वल टू 1/2 q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। सो जो तुम्हारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। दिस वाज आल्सो अ गुड क्वेश्चन ऑफ 2008। सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था इसको सॉल्व करने में। Now question number 21 of 2008 only. Charge Q is uniformly distributed over a thin half ring of radius r. तो ये रहा रिंग जिसका रेडियस है r, और यहाँ पे जो चार्ज Q है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, over a thin half ring of radius r. The electric field at the center of the ring is. Now we have to find the electric field here only. Here electric field कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कुछ डायरेक्शन होगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो कुछ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे सो दिस विल टेक मोर देन 2 या 3 मिनट्स। अगर तुम इसको प्रॉपर फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा बाई 2। सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला जिससे तुम लेस देन 20 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे जो 2 इंटू के दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड लैम्डा क्या है वैल्यू, यानी कि q डिवाइडेड बाई, अब इसके लैम्डा के टर्म्स तुम फाइंड करोगे दैट इज इक्वल टू लेंथ यानी कि पाई r। तो दिस इज इक्वल टू लाइक दिस
पाई आर, और नीचे पहले से एक आर मौजूद है ये वाला, एंड यहाँ पे जो अल्फा है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी कि sin 90 इज इक्वल टू 1। सो वेरी सिंपली यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 2 से यहाँ पे कैंसिल होगा 4, तो ये बचाएगा 2। नाउ दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी पाई है एक और यहाँ पे पाई है यानी कि पाई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एक है यानी कि एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे आर दो यानी कि आर स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Now let's move to the next question. Question number 22 of 2009. The electric field at the distance r from the center of a space between two concentric metallic spherical cells of r1 radii and r2 carrying the charge q1 and q2. Now the electric field at a distance r from the center of concentric metallic sphere. Okay, ये concentric है first of all, ठीक है, और जो रेडियस है उनके r1 और r2 है, so this is r1 and this is r2. ओके और इनके पास जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। तो यहाँ पे बस लगा लो तुम गॉस लॉ वाले फॉर्मूले को, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज इनसाइड कौन है, चार्ज इनसाइड इज Q1, तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dx इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस dx इज इक्वल टू एरिया, ठीक है, तो एरिया टर्म्स में होता है ना EA। सो तुम कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का सॉरी R स्क्वायर, ठीक है। तो तुम यहाँ पे आंसर जो तुम बोल सकते हो ये वाला करेक्ट आंसर है, यहाँ पे R1 हटा दो यार, सिर्फ R है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है, बिकॉज हमें इससे फाइंड आउट करना था ना अपने आंसर को, इलेक्ट्रिक फील्ड को R पे। तो तुम सपोज करो कि ये जो R है ना यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, वो सॉरी लेट मी यूज द अनदर कलर, यहाँ पे वो R एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो तुमने एक फॉल्स गॉसियन सरफेस, एक अजम्पशन बनाया गॉसियन सरफेस का, और तुमने देखा कि उसके अंदर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज था, प्लस Q1 था, तो तुमने सिर्फ Q1 को लिया, Q2 को इग्नोर किया बिकॉज ये गॉसियन सरफेस के बाहर था, और जो गॉसियन सरफेस की जो रेडियस थी वो R थी, और ये जो रेडियस R थी दिस वॉज ग्रेटर देन R1 बट इट वॉज लोअर देन R2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन एंड वेरी इजी, अगर तुम्हें तरीका पता है सॉल्व करने का तो। Now question number 23 of 2010. The potential at a point P due to the electric dipole is this. Now P is at distance 50 centimeter apart from the center O of the dipole, and if it makes CP angle 60 degree with the positive side of the axial line of the dipole, what is the moment of the dipole? Okay, अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है। पहले तो तुम एक्सियल का जो फॉर्मूला होता है उसको अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। पहले लिखो पोटेंशियल के लिए, फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, बिकॉज हमें पोटेंशियल के लिए फाइंड आउट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं। तो यहाँ पे डाइपोल है पोटेंशियल वाले का। सो नाउ यहाँ पे जो V का जो वैल्यू दे रखा है दैट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁵। नाउ दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, मार्क इट। Now this is equal to 9 into 10⁹ into P, और यहाँ पे जो cos है ना उसका जो वैल्यू दे रखा है दैट इज 60 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे देखो फ्रॉम सेंटर O से जो डाइपोल है, और इफ CP मेक्स द एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, ठीक है। सो P cos 60 डिग्री यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे R क्या है दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर यानी कि 1/2 टू द होल स्क्वायर। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू फॉर P जिसको हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे तुम कैंसिल आउट कर सकते हो 9 को 1.8 से, दैट इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे कर लो 4 एंड दिस इज 18 एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁴। नाउ ये जो 2 है ये नीचे की तरफ है, तो तुम कह सकते हो कि ये ऊपर चला आएगा, और ये जो 1/2 टू द होल स्क्वायर है, नाउ दिस विल बिकम लाइक दिस। सो जो अपना वैल्यू होगा वो P का चला आएगा, और यहाँ पे 10⁹ नीचे चला जाएगा। So after solving this, we are going to get our value of P that is equal to 10⁻⁻5 coulomb meter. So this was also a good question and quite easy अगर तुम्हें फॉर्मूला पता हो पोटेंशियल पे डाइपोल का, ठीक है। KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 24 है विच वाज आस्क्ड इन 2011, ये काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन है, देखो टफ नहीं है बट ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, मतलब टाइम टेकिंग है।
तो यहाँ पे तुम देखो क्वेश्चन क्या है, द फिगर शोज टू सिचुएशंस इन विच द गॉसियन क्यूब्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द एरो एंड वैल्यू इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज। तो हमें नेट चार्ज फाइंड आउट करना है। अब हमें बताना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो नेट चार्ज पॉजिटिव उस कंडीशन में होगा जब आउटसाइड ज्यादा होगा, ठीक है, और निगेटिव उस कंडीशन में होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज्यादा होगा। तो बस ये दो कॉन्सेप्ट को याद रखो। देखो यहाँ पे देखो 6 वाला बाहर जा रहा है और ये 7 वाला बाहर आ रहा है, बाकी ये जितने सब अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सारे अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो तुम जो इन है, इन इन कौन सा है, तो यानी कि फिगर 1 के लिए हम बातें कर रहे हैं। और 1 जो अंदर की तरफ है 7 + 2 9 + 15 24 + 8 24 + 8 32, यानी कि 32 इन, और जो आउट है 6 + 7 यानी कि 13 आउट, यानी कि अंदर ज़्यादा है। सो सिंपली कह दो कि ये जो 1 वाला है दैट इज निगेटिव। और अब सेकेंड वाले के लिए देखो, अंदर की तरफ कौन है, अंदर की तरफ है 2 + 3 5, अंदर की तरफ है 5 बस, और एक और होगा 2 + 3 5, और बाहर की तरफ कौन से दिख रहे हैं, इसको देखो, बाहर की तरफ दिख रहे हैं ये 5 6 7 9, यानी कि आउटसाइड ज़्यादा है, सिंपली दिख रहा है। अंदर की तरफ बस 5 है और बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो बाहर की तरफ ज़्यादा यानी कि ये पॉजिटिव होगा और ये होगा निगेटिव। हो गया। सो द फर्स्ट वन इज निगेटिव, सेकेंड वन इज पॉजिटिव, 24 का ये करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो, देयर एग्जिस्ट अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म है यानी कि यहाँ पे एफ नेट भी जीरो नहीं होगा, कीप इन माइंड, टाउ तो जीरो नहीं ही था। along the x-axis as shown in the figure below, the field increased at the uniform rate plus x-axis positive. Now a dipole is placed inside the field as shown, which of the following is correct for the dipole। अब देखो dipole moves along the positive x-axis, undergoes a clockwise rotation। अब इसको आने से पहले देख लो कि टोटल इसमें हमें करना क्या है। नाउ यू नो डैट कि ये जो फील्ड है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट पे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो तुम देख सकते हो जो तुम्हारा निगेटिव क्यू है वो आगे की तरफ है, तो तुम कह लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहाँ पे ज्यादा होगी निगेटिव वाले के पास, ठीक है, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव क्यू। तो तुम कह सकते हो जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्यू ई, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन सिंपली से दैट कि ये जो निगेटिव चार्ज पे होगा इसके पास फोर्स ज़्यादा होगा, तो निगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा F ड्यू टू निगेटिव क्यू, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, ओके, पॉजिटिव क्यू की वजह से। तो तुम कह सकते हो कि कौन सा डोमिनेंट होगा, तो फोर्स जो डोमिनेंट होगा वो निगेटिव क्यू वाले होंगे। तो तुम कह सकते हो दिस डाइपोल इज टुवर्ड्स द निगेटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पे जो रोटेशन होगा तो तुम देख लो कि ऐसे कुछ हो रहा है ना इस डायरेक्शन में, सो तुम कह लो कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक, निगेटिव टू पॉजिटिव। सो द करेक्ट आंसर इज डाइपोल मूव्स अलोंग पॉजिटिव, गलत, डाइपोल मूव्स अलोंग निगेटिव एक्सिस एंड क्लॉकवाइज गलत, एंटी क्लॉकवाइज एंड पॉजिटिव गलत। सो आर करेक्ट आंसर इज निगेटिव एक्स एक्सिस एंड अंडरगोज द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि -q, F ड्यू टू -q, F ड्यू टू +q, और जो इसका रोटेशन हुआ कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, -q to +q। Now let's move to the question number 26 of 2013। 2 point charges of +q -q जो कि डिस्टेंस पे है कुछ ऐसे रिस्पेक्टिवली ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो लेट्स ड्रॉ द एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये रहा अपना y और ये रहा x। सो -d और +d, यानी कि दोनों एक्स एक्सिस की बातें हो रही हैं। तो इस डिस्टेंस पे जो कि -d है, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा है, +q है, और -q है कुछ इस डिस्टेंस d पे, ठीक है। सो वी कैन सिंपली से देखिए जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होगा वो पॉजिटिव x टू निगेटिव x होगा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, पहले देख लेते हैं इसको क्या क्या है सिस्टम इसका। सो जो डाइपोल होगा दैट डाइपोल इज इक्वल टू q इंटू 2d, ओके, बिकॉज ये जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 2d हो जाएगा। सो अब इसको रीड करते हैं। नाउ द ऑप्शन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्सिस हैज द सेम डायरेक्शन, नहीं, बिकॉज यहाँ पे डाइपोल है तो किसी के पास पॉजिटिव है तो किसी के पास निगेटिव है,
तो कैसे सेम डायरेक्शन हो सकता है? नाउ क्वेश्चन पॉइंट बी, वर्क हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ऑरिजिन। नहीं, क्योंकि दोनों चार्ज दे रखे हैं, ऐसा कोई है नहीं कि एक चार्ज था तो दूसरा चार्ज में इन्फिनिटी से लाना है। थर्ड ऑप्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके वेट अ मिनट, कुछ हद तक ये पॉइंट सी करेक्ट लग रहा है। आप देखो कैसे, इसने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो तुम किसी पॉइंट वाई पे मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, फाइंड आउट करना है, तो कैसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो होगा कुछ इस डायरेक्शन में आया, और यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इस डायरेक्शन में आया, ठीक है। तो तुम कह सकते हो जो नेट होगा इस डायरेक्शन में होगा, एंड दिस इज द डायरेक्शन फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन डी देखो, द डाइपोल मूवमेंट इज टू क्यूडीज अलोंग एक्स एक्सिस, रॉन्ग, बिकॉज जो हमारा डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स टू निगेटिव एक्स एक्सिस है, यानी कि डायरेक्शन इज अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 27. दिस वाज आस्क्ड इन ईयर 2013. सो अ चार्ज पार्टिकल q is placed at the center, okay, of length, ये रहा। another charge q is placed at the distance l, यहाँ पे another charge है distance l from o, so that the next electric flux through the ABCD is, ABCD कौन है? A B C D। सिंपल बात है, जब तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें कर रहे हो तो हमें बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अंदर के चार्ज को देखना है। सो अगर तुम टोटल की बातें करो तो टोटल के लिए हो जाएगा q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। बट जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक इमेजिनरी क्यूब भी क्रिएट करना हो सकता है, ठीक है। तो देखो, अब इमेजिनरी क्यूब क्रिएट करना है कि नहीं करना है एक क्वेश्चन ही बता रहा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम इमेजिनरी क्यूब क्रिएट करते हो, सो यू कैन से दैट कि ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे चार्जेस, ठीक है, और जो हमारा नेट आंसर होगा वो जीरो हो जाएगा। बट अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है कि अगर नहीं जीरो कैसे होगा, तो पहली बात तुम ये सारे ऑप्शंस को देखो, जो कि बाकी तीन ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो ये सीधा बात है कि ये तीनों तो आंसर कभी नहीं हो सकते ए सी डी, बिकॉज फ्लक्स के लिए क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे देखो सब में लेंथ नीचे से डिवाइड हो रखे हैं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड जो लास्ट ऑप्शन बचा विच वॉज ऑप्शन बी, तो तुम एटलीस्ट इसी को करेक्ट मानते। और जो दूसरा जो आइडिया तुम कर सकते हो, यहाँ पे तुम बोलोगे कि यहाँ पे एक एजम्पशन वाला क्यूब है, ठीक है, जिसकी लेंथ सेम है एल, और यहाँ पे चार्ज क्यू है, और तुम ऐसे बोलोगे क्यू डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो बन जा रहे हैं, ठीक है। So let's move to the next question of 2014 sorry, question number 28 of 2014. So in the medium of dielectric constant K, the electric field E. Now epsilon naught is the permittive to the free space, though electric displacement vector is. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ रहा है अपने से। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है। सो यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेट्स राइट दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कर लो इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का माइट भी आइडिया ना हो। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 27 वाज आल्सो अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम कह लो कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होता है, सॉरी सिर्फ एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ पे मैंने सिर्फ एप्सिलॉन लिखा है, एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ दिस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई के, है ना। सो वी कैन से दैट जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है dv, सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट e इनटू के। तो देखो कहाँ पे मैच हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट ई इंटू के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 28 नंबर। बाकी सब में ये डायमेंशनली भी करेक्ट नहीं है, तुम चाहो तो कैलकुलेट कर लो डायमेंशनली। तो दिस ऑल थ्री आर रॉन्ग और ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर कुछ पता होना चाहिए था तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं किसको है, एप्सिलॉन इनटू ई को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ 2015। यहाँ पे तीन चार्जेस दे रखे हैं क्यू, कैपिटल क्यू एंड 4q, जो कि प्लेस्ड है एक स्ट्रेट लाइन पे लेंथ l, और उसका डिस्टेंस दे रखा है तीनों चार्जेस का। सो लेट्स ड्रॉ दिस फर्स्ट। तो यहाँ पे तुम लो q, यहाँ पे लो कैपिटल Q, यहाँ पे लो 4q। सो दिस इज ऑरिजिन, दिस इज l/2, दिस इज फाइनल लेंथ l। सो इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन q इज जीरो, तो हमें कहाँ पे नेट फोर्स जीरो लेना है, यहाँ पे हमें एफ नेट को लेना है जीरो। सो द चार्ज q मस्ट बी इक्वल टू, पहली बात एक चीज ध्यान में देना, जब हमें नेट फोर्स जीरो करना होता है तो हमें अपने आप चार्ज की पोलैरिटी चेंज करनी पड़ती है। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर उसको देखते हैं क्या सीन है इसका, ठीक है। तुम ऐसे कर लो, कुछ हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में आपको बताने वाला सीन है। तो q इंटू क्यू
डिवाइडेड बाई L/2 to the whole square is equal to Q into 4Q L square. सो L स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, ये चला जाएगा 2 स्क्वायर ऊपर, यानी कि ये हो गया 4, तो यहाँ से 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन से दैट कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू कैपिटल Q. सो Q इज इक्वल टू Q, ऐसा कुछ आया, कैपिटल Q इक्वल टू स्मॉल q. बट तुम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते, बिकॉज हमें अपनी चार्ज की पोलरिटी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी. एंड वी कैन से दैट कैपिटल Q होगा दैट विल बी इक्वल टू -Q. ठीक है, ये कॉमन सेंस है कि तुम्हें अप्लाई करके चार्ज की पोलरिटी चेंज करनी है. बिकॉज हमने ऐसे इसको सॉल्व करा, जो प्रॉपर तरीका होता है, ये तरीका शॉर्टकट था एक हिसाब से. जो प्रॉपर तरीका होता है कुछ हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ता है इसको, सारे जो भी टर्म्स हैं सबको एक साथ हमें लेके कुछ ऐसे सॉल्व कर रहे होते. 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देन हम कहते कि ये जब पॉजिटिव साइन को हम निगेटिव में कन्वर्ट करते तो ऑटोमेटिकली एक निगेटिव साइन जनरेट हो जाता, इसलिए. बाकी तुम ऐसे सॉल्व करो, और जो जहाँ भी इक्विलिब्रियम की बातें हो वहाँ पे चार्ज की पोलरिटी पॉजिटिव निगेटिव हो, निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके चेंज कर देना, यू विल गेट योर करेक्ट आंसर. So now let's move to the next question, which is question number 30 of 2015. So यहाँ पे देखो क्या है, the electrostatic potential inside a charged spherical ball. Now this is a charged spherical ball, और जो उसकी phi दे रखी है वैल्यू, that is equal to AR square plus B, where R is distance और AB जो है वो constant है. ठीक है, so keep in mind ये जो phi है, this is the electrostatic potential. ठीक है, तो अब तुम कह सकते हो एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस फाई बाई डी आर, है ना. बिकॉज ये जो फाई है वो किसको डोनेट कर रहा, ये फाई डोनेट कर रहा है, सॉरी फाई डी टी होता है. सो देखो ये तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, सो यू हैव टू सॉल्व इट वेरी नाइसली. ठीक है, तो अब देखो तुम जब इसको देखो, ये फॉर्मूला मैंने किसका लिखा, मैंने बस ये लिखा है पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस होता था ना, सॉरी डिस्टेंस आर से हम करते थे, इसी चीज को मैंने लिखा है. तो अब देखो तब जब इसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसकी निकालोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 2AR, है ना. बिकॉज ये जो है बी कॉन्स्टेंट, ये तो हो जाएगा 0 आफ्टर डिफरेंशिएशन. सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द चार्ज डेंसिटी. तो इसके लिए तुम एक फॉर्मूला अप्लाई करो, दिस इज द फॉर्मूला DA दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और यहाँ पे हमें एरिया भी पता है. दिस इज अबाउट द स्फेरिकल सेल. ठीक है, तो ये शेल के लिए है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू 4πr स्क्वायर. सो वी कैन से दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू 2AR, जो एरिया है. नाउ दिस एरिया इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर. इस एप्सिलॉन को ऊपर ले आओ, एप्सिलॉन नॉट. नाउ दिस इज इक्वल टू चार्ज. सो जो तुम्हारा चार्ज आ गया दैट इज इक्वल टू 8Aπr³ एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इक्वल टू चार्ज. ओके, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था ना, तुमने नेगेटिव चार्ज गलती से छोड़ दिया था यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज आवर वैल्यू फॉर Q. अब हमें फाइंड आउट करना है चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज डिवाइडेड पर यूनिट वॉल्यूम, Q डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, Q डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. तो ये एक अलग तरीका है, बिकॉज इस क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे ही अप्रोच करना होता है. तुम डायरेक्टली वॉल्यूम की वॉल्यूम नहीं ले सकते हो, अंदर वाली की वॉल्यूम हमें नहीं लेना है, हमें वॉल्यूम लेना है एक खुद से गॉसियन सरफेस क्रिएट करके. तो एक हिसाब से कह लो रिंग के लिए होता है, तो उतना दिमाग नहीं लगाओ, बस तुम इतना याद रखो इस प्रोसेस को. जब तुम्हें चार्ज बाई वॉल्यूम लिखना हो तो तुम पहले क्या करो, जो तुम्हारी वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू R, देन मल्टीप्लाई करो R डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो दिस इज आर Q. तो अगर तुम इसको विथ रिस्पेक्ट टू R डिफरेंशिएट करो, नाउ दिस विल बी इक्वल टू -24 AπR स्क्वायर, है ना. R स्क्वायर A, सॉरी A यहाँ पे ले रखा है मैंने. सो दिस इज द वैल्यू, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट. नाउ दिस गेट मल्टीप्लाइड विथ R डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. तो R डिवाइडेड बाई वॉल्यूम यहाँ पे लोगे तुम 4πr³. बिकॉज हम यहाँ पे किसी 3D बॉडी के वॉल्यूम के बारे में बातें नहीं कर रहे होते हैं, हमें बात करना होता है एक गॉसियन सरफेस जो हम खुद से क्रिएट करते हैं. सो लेट्स सॉल्व दिस. आफ्टर सॉल्विंग दिस क्या आएगा तुम्हारा वैल्यू, R से यहाँ पे R³ कैंसिल होगा तो ये R स्क्वायर बच जाएगा. सो विल गेट आर वैल्यू, R स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई और 4, यानी कि अपना जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू -6A एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, -6 एप्सिलॉन नॉट. और जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर C. दिस वाज अ गुड क्वेश्चन ऑफ 2025. तो इसको तुम कर लो स्टार मार्क्स. ठीक है, नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है. देखो क्या है ये, a infinitely long solid cylinder of radius r has a uniform volume charge density rho. It has a spherical cavity of radius r/2 with its center on the axis of cylinder.
as shown in the figure. So the magnitude of electric field at the point P, which is at distance 2r, ये रहा 2r, from the axis of cylinder, the expression is given like this. So what is the value of k? This is quite long question. ठीक है, क्वेश्चन इतना बड़ा है, सॉल्यूशन कैसा होगा? So let's try to solve this. Now this question number 31, this is a very good question because तुम खुद सोच सकते हो इसके लेवल, because this was asked in 2016 in AIMS and this is also asked once in IIT JEE. ठीक है, सो लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा है। और अगर क्वेश्चन को, अगर पेपर को अगर टफ करना हुआ इन द नीट एग्जामिनेशन, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं जो कि PYQ भी हैं और टफ भी हैं। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले हमें करना है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस सिलेंडर की वजह से। ठीक है, सिलेंडर की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है यहाँ के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी कैविटी के लिए फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हटाया जा रहा है तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और हमारे पास ई नेट मिल जाएगा, और उस ई नेट को हम इससे कंपेयर करेंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सो लेट्स फाइंड फॉर द सिलेंडर फर्स्ट। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द, सॉरी सिलेंडर मैं बोल रहा हूँ, इन्फिनेटली लॉन्ग सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपन आर। अब हमें यहाँ पे लैम्डा तो नहीं दे रखा, ना ही चार्ज दे रखा है। सो वी आर गिवन द रो। ठीक है, जो कि इसकी वॉल्यूम डेंसिटी है। तो वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सो दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एल। तो क्यू बाई एल हो गया लेमडा। नाउ दिस लेमडा इज डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें जो रेडियस जो आर है हम इसके लिए ले रहे हैं, ये वाले आर को ले रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिलेंडर। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू के को लिख लो तुम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये रहा लेमडा और ये रहा रो। सो लेमडा इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड विथ आर, ये वाला आर। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गोइंग टू गेट 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिखो रो, ये पाई से पाई कैंसिल होगा, रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक और आर कैंसिल होगा यहाँ से। सो वी आर गोइंग टू गेट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो अच्छा हमें यहाँ पे 2r के लिए फाइंड करना है ना, ये हमारा 2r है। तो यहाँ पे हम ये जो r है जो हम जनरली स्मॉल r से इसको डोनेट कर रहे थे, दैट इज इक्वल टू 2r बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इसको लिखो 2r। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो हल्का मिस्टेक हो रहा है, दैट इज डजंट मीन कि तुम इसको स्किप कर दो बिकॉज दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब इसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये टोटल हो गया अपना। अब हमें यहाँ पे इस कैविटी के लिए फाइंड आउट करना है और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो अब ये जो कैविटी है, तो कैविटी के लिए बहुत ही जनरल फॉर्मूला होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कैविटी, तो के का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू जो है, क्यू जो रहा अपना ये, तो तुम क्यू को क्या लिख सकते हो, रो इनटू वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम यहाँ पे मैं अलग पेज में करता हूँ, रुक जाओ। ओके, तो ये जो रो है इनटू वॉल्यूम, तुम क्यू को लिखोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आर जो अपना है r/2 है ना वैल्यू, तो आर क्यूब कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आर स्क्वायर जो होगा दैट विल बी 4r स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज हमारा जो डिस्टेंस है ये 2r है। नाउ लेट्स सॉल्व फॉर दिस। तो इसका जो वैल्यू होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल होगा r क्यूब से, तो सिर्फ r बचा, इसको रिमूव कर दो। ठीक है, नाउ पाई कैंसिल आउट होगा, सो 4 भी कैंसिल आउट होगा यहाँ से। तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा रो r, ये 8 इंटू 3 नीचे आ गया 24। नाउ दिस 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो वी आर लेफ्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैविटी एज इक्वल टू रो आर 96 एप्सिलॉन नॉट। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैविटी फाइंड आउट कर लिया, ऑल्सो वी हैव फाउंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सिलेंडर। तो अब ई नेट के लिए दोनों को तो माइनस करो, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिलेंडर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैविटी। सो दैट इज इक्वल टू रो आर 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर डिवाइडेड बाई 96 एप्सिलॉन नॉट। लेट्स ऐड अ पेज, इंसर्ट अ पेज अबव। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आएगा, जो ई नेट आएगा दैट इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो 96 नीचे रहा, 96 एप्सिलॉन नॉट, नाउ 24 माइनस 1 रो आर दैट इज इक्वल टू 23 रो आर डिवाइडेड बाई 96 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द करेक्ट आंसर जो कि अपना फाइंड आउट हो रहा है। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था किसके लिए, एक इक्वेशन था जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या था, 23 रो आर डिवाइडेड बाई 16 के एप्सिलॉन नॉट। सो ये रहा 23 रो आर डिवाइडेड बाई 16 के एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो 16 के है दैट इज इक्वल टू 96, सो के इज इक्वल टू 6। सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड आर आंसर इज 6 विच इज 31 का ए। ओके, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ये आया तो काफ़ी कंपटीशन चेंज हो जाएगा, रैंकिंग की पैटर्न चेंज हो सकती है, सो कीप इन माइंड। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो ऑफ 2016। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, पहले देखो सेम चीज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए 2 पाई नेसेसरी है, 2 पाई डिवाइडेड बाई जो आई है वो इनर्शिया है, तो इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू एम, ठीक है, मास। तो आई ऊपर रहना चाहिए, तो पहली बात ए को तुम एलिमिनेट कर दो तो बचा अपना डी सी डी। तो अब लेट्स फाइंड आउट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, और यहाँ पे P जो पॉइंट है इज अलोंग द E। If the dipole is slightly rotated about an axis perpendicular to the plane containing E and P, passing through the center of the dipole execute the SHM. Consider I to be the moment of inertia of the dipole of the axis of rotation. तो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा ऐसे कुछ ऑक्सीलेशन के लिए। तो जो अपना टाइम पीरियड होता है, सारी चीज़ों को करो साइड में, और जो टाइम पीरियड होता है उसको तुम कुछ ऐसे लो, दैट इज इक्वल टू वेट, हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी, एसएचएम के टर्म्स में बातें कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, एंड नाउ तुम्हें ओमेगा का एक वैल्यू पता होगा, ये जो ओमेगा होता है दैट इज इक्वल टू पीई डिवाइडेड बाई आई, ठीक है, यानी कि आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पीई, ठीक है। तो तुम इसको कर लो ऐसे, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई आई डिवाइडेड बाई पीई। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये एक फॉर्मूला भी है तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, इस फॉर्मूले को डेरिवेशन करने से अच्छा है कि इस फॉर्मूले को याद करो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, और यहाँ पे 2 इज रॉन्ग, ठीक है। इनर्शिया अगर 1/2 होता तो ऑप्शन सी करेक्ट होता, बट इनर्शिया आई है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 33। अ हॉलो इंसुलेटेड conduction sphere is given by a positive charge plus 10 microcoulomb. What will be the electric field at the center of the sphere of its radius 2 मीटर। यहाँ पे hollow insulated conduction sphere, ओके। तो ऐसे केसेस में जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ बॉडी कंडक्टर, ठीक है, वो 0 ही होता है। और यहाँ पे हॉलो भी तो है, ये भी चीज ध्यान में देना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34 एंड फ्रॉम हियर एजर्शन रीजन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और एक अराउंड 10 क्वेश्चन एजर्शन रीजन के जो पीवाईक्यू में पूछे गए थे। सो लेट्स डू इट वन बाय वन। So let's read the first assertion, which is 34 number of 1999, ठीक है, 1999, okay. So assertion is electron move away from the region of higher potential to the region of lower potential, और जो region है electron has a negative charge, okay. बातें तो इसकी सही हैं बट ये assertion गलत है, बिकॉज assertion गलत होने का रीजन ये है, यहाँ पे है electron has a negative charge, ठीक है। तो इसकी वजह से ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाएगा, लोअर टू हायर पोटेंशियल। बट अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो ऑफकोर्स वो हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता, बट फॉर इलेक्ट्रॉन दिस इज लोअर टू हायर, सो assertion इज गलत। एंड द रीजन एन इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, सो दिस इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ 2001। अ मेटेलिक शील्ड इन फॉर्म ऑफ अ हॉलो शेल मे बी built टू ब्लॉक एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो हो जाता है 0। in a hollow spherical shield the electric field inside it is 0 at every point। देखो जो मैंने रीजन दिया वही रीजन सेम इसने लिख रखा, यानी कि assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation for the assertion। now question number 36। electric lines of force never cross each other। बात तो इसकी सही है। अब रीजन क्या है, electric field at a point superimposed to give a resultant electric field। both assertion and reason is correct, but जो इनके explanations है वो correct नहीं है, reason is not the correct explanation for the assertion, ठीक है। Now let's move to the question number 37 of 2003। The Coulomb force is the dominating force in the universe। This is not correct, because Coulomb force तो खुद एक point spherical charges पे apply होता है, so we can say that जो gravitational force होता है ना, this is the dominating, ठीक है। So assertion is wrong। Now reason जो है तो Coulomb force is weaker than the gravitational force, नहीं,
ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट, ठीक है, ग्रेविटेशनल सबसे वीक होता है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो दोनों गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ 2007, जो assertion है, इन अ कैविटी विद इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ऑफ कोर्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। जो रीजन है, चार्जेस इन अ कंडक्टर रिसाइड ओनली एट इट्स सरफेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो वी कैन से दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion एंड बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट। अब तुम एक और चीज को समझो, ये जो assertion जो दे रखा है, ये जो कैविटी है कंडक्टर का, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है, तो इसका एक और रीजन है, बिकॉज वर्च्यू ऑफ इंड्यूस चार्जेस, तो यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस भी रोल प्ले कर रहे होते हैं, इंड्यूस चार्जेस, बिकॉज जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो जिसकी वजह से दिस इंड्यूस चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट ऑफ टोटल, मतलब जो ओरिजिनल जो चार्ज था उसकी वजह से, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होता है दैट गेट कैंसल आउट और ये जीरो हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। So let's move to the next question, that is question number 39. This was asked in 2012. Assertion देखो, 4-point charges Q1, Q2, Q3, Q4 are shown in the figure. The flux over the shown Gaussian surface depends only on the charges Q and Q2. Of course, जो charge inside होंगे उन्हीं पे depend होगा। जो reason है, electric field at all points on the Gaussian surface depends on, नहीं ये गलत है, electric field depends the charges depend on the charges of both inside and outside, तो तुम कह सकते हो electric field में this electric field will depend upon the charge of Q1, Q2, Q3 and Q4 all, but this for flux only Q1 and Q2 because ये सिर्फ inside वाले, यानी कि Q enclosed पे डिपेंड करते हैं, enclosed divided by epsilon naught, बट ये जो है Q inside और Q outside दोनों पे डिपेंड करते हैं। सो द assertion is correct but the reason is false, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर टू आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड डिस्टेंस 2d अपार्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये रहा Q और ये रहा एक और Q, 2d distance. The equilibrium of a positive test charge placed at the point O midway between them is stable for displacement along the x-axis. तो तुम कह सकते हो जब कोई फोर्स इंड्यूस होगा तो यहाँ पे इधर आएगा और इसकी वजह से इधर आएगा, तो जो नेट होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे थोड़ी फाइंड आउट करना है, अपनी O की पोजीशन तो यहाँ दे रखी है, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज है भी, तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, तो ये इधर होगा डायरेक्शन, और इसको ये रिपेल करेगा तो इधर होगा, तो ये स्टेबल होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। रीजन जो है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्जेस जीरो, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और जो यहाँ पे रीजन है फोर्स ऑन टेस्ट चार्जेस जीरो, ये भी करेक्ट है, बिकॉज जो तुम्हारा टेस्ट चार्ज होगा वो क्या फील करेगा, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब जिस तरफ डायरेक्शन में उसकी मोशन होगी उसके अपोजिट में उस पर फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से उसकी रिस्टोर हो जाएगी ना वापस, तो दोनों तरफ से सेम चीज होगा। सो वी कैन से दैट इफ पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस देन द नेट फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट and the test charge will also come back to its original position, and this is the only reason जिसकी वजह से we can say that force on the test charge is zero, and this is also reason is also correct, assertion is also correct, but this is not the correct explanation, so we can say that कि reason is not the correct explanation for the assertion, but both are correct, ठीक है, both correct. Now let's move to the next question of 2015. Question number 41. A deuteron and an alpha particle are placed at an electric field. F1 or F2 be the forces acting on them, and A1 and A2 are the acceleration respectively. तो क्या A1 और A2 इक्वल है? उसको जानने से पहले तुम इसके बारे में समझो क्या बोल रहा है। ये जो ड्यूट्रॉन होता है, इस पे जो मास होती है दैट इज इक्वल टू टू, मतलब ऐसे मैं बांध रहा हूँ, ठीक है, तुम अभी रुक जाओ। और जो चार्ज होती है Q दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे जो मास होगी दैट इज इक्वल टू 4, इस पे मैं प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बातें कर रहा हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स प्रोटॉन 4 टाइम्स प्रोटॉन, और यहाँ पे जो चार्ज होती है इट इज इक्वल टू 2 इंटू ई, ओके। सो अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पहली बात फोर्स, ओके। तो लेट्स सी दिस एफ, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, इफ F1 एंड F2 बी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम एंड A1 A2 का एक्सेलरेशन है, तो आप फोर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं उसके Q और E के मल्टीप्लीकेशन से। सो वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू Q, तो पहले हम ड्यूट्रॉन की फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो E मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड E, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगा दैट विल बी 2 इंटू ई। तो अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मास ऑफ ड्यूट्रॉन से और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल से डिवाइड करना होगा। सो यहाँ पे मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या है 2, यानी कि 1/2 हो गया इसका वैल्यू, और यहाँ पे 4 होगा, है ना।
मास 4 होगा, तो यहाँ पे भी हो गया 1/2. सो वी कैन से दैट जो एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल है दैट इज इक्वल टू 1:1 एंड असर्शन इज करेक्ट. ठीक है. और जो रीजन है, फोर्सेस विल हैव, सॉरी, फोर्सेस विल बी सेम इन इलेक्ट्रिक फील्ड. नहीं, फोर्सेस आर नॉट सेम बिकॉज इनके जो चार्ज है वो डिफरेंट है. सो वी कैन सिंपली से दैट कि exertion तो करेक्ट है बट रीजन इज इनकरेक्ट. exertion is correct but reason is false. Now let's move to the next question which was asked in 2016. In the absence of an external electric field, the dipole moment per unit volume of a polar dielectric is 0. Dipole moment per unit volume of a polar, no, this is, हाँ नहीं करेक्ट है. In the absence of an external electric field, the dipole moment per unit volume of a polar dielectric is 0. और इसका जो रीजन होगा, बिकॉज ऐसे पोलर मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट्स होते हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. सो अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ तो अपने आप को कैंसिल आउट कर लेंगे और वो जीरो हो जाएंगे. सो द रीजन देखो यहाँ पे क्या है, डाइपोल्स ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेड. सो बोथ assertion एंड रीजन इज करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion. नाउ लेट्स मूव टू द, देखो तो यहाँ पे तुम इसको ए मान लो, ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि बोथ करेक्ट और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. और यहाँ पे तुम मानो सी बिकॉज assertion इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 43, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2017. द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल अनचार्ज कंडक्टर. ओके, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल uncharged conductor. The number of lines of forces terminating on the sphere will be more than those emerging from it. Okay. जो रीजन है, the surface charge density यानी कि Q divided by area on the sphere nearest to the point charge will be negative and maximum in magnitude compared to the other points of the sphere. So here we are going to use the Gaussian law. तो सपोज करो इसको थोड़ा दूर करते हैं. ओके, ये एक एजम्पशन क्रिएट हुआ. ओके, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे कुछ बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकली. ठीक है, एंड दिस इज अनचार्ज्ड. So here we can simply say that कि जो number of lines entering the surface, suppose to number of lines entering the surface is equal to number of lines leaving the surface. ठीक है, बिकॉज ये तो पहले से अनचार्ज था ही, तो यहाँ पे पहले और बाद में दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी जो रही वो कांस्टेंट बनी रहेगी. सो यहाँ पे देखो एजर्शन क्या बोल रहा था, नहीं ये गलत हो गया बिकॉज यहाँ पे दोनों पे इक्वल रह गया, कांस्टेंट रह गया. तो यहाँ पे मोर की बातें कहाँ से आ रही हैं, तो दिस इज रॉन्ग. रीजन देखो, द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द पॉइंट चार्ज विल बी नेगेटिव. गलत, बिकॉज टोटल पे कांस्टेंट बना रहेगा. सो बोथ एजर्शन एंड रीजन इज रॉन्ग. ओके, सो वी आर डन विद द 21 years क्वेश्चन फॉर दिस. ओके, so thanks for watching.